اور یہ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی سے کوئی کچھ مہینے پہلے ہی رائل انڈیا میوٹنی ہوئی تھی کراچی میں، جس کو رن میوٹنی کہتے ہیں، جس میں جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی تھی، ان کے لوگوں کا ٹرائل چل رہا تھا، تو there was a revolt uprising amongst the sailors in جیسے ممبئی آج کل کہتے ہیں کراچی میں، primarily it was Karachi where this uprising took place. اور انہوں نے کیماڑی منوڑا یہ سب 47 میں اگست کے بعد ہی قبضہ نہیں، اس سے پہلے قبضہ کر لیا تھا، and then there was fighting in منوڑا area. اب وہ بات یہ کہ ہمیں اس تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں ہے کہ رن میوٹنی ہوئی کراچی میں، کہ یہ ہے کیا چیز، بیکاز اٹس ناٹ ٹچڈ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فوج کا انوالومنٹ ہے کسی چیز میں، تو سوال اٹھتے ہیں ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ ایک دم سے نہیں ہوا. یہ انڈین نیشنل آرمی جب ڈیزالو ہوئی تو ریڈرز ان کشمیر میں آپ دیکھیے میجر جنرل وہ اپنے جو اکبر ہیں، انہوں نے لکھا کہ 20,000 رائفلیں جو پولیس کی تھیں وہ فوج کو دے دی گئیں، اور پولیس تھانے میں جو لنڈی کوتل سائٹ پہ جو کاپی گنز بنتی ہیں وہ ان کے ڈال دی. اور ملٹری چیف جو برٹش تھے اس وقت جنرل تھے، he didn't even know. So the military has right from the beginning been a part and parcel of our psyche کہ ہماری فوجیں، ہمارے حکمران، اور ہم نے پانی پت کی یہ لڑائی اور وہ لڑائی، اور ٹیپو سلطان اور حیدر علی. ہمارے کوئی ہیرو لکھنے والے یا فلاسفر نہیں ہیں. اقبال کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو نیشنل سانگ انڈیا میں چلتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم نے اس کی کاپی کی پھر کہ بھائی جان ایک اس کی نقل کر کے پاکستان کے لیے بنا دو. تو یہ ہمارے تھنکر ہیں، انہوں نے اپنی ہی نظم کی چوری کی اور اس کو ملی ترانہ بنا دیا. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. ہاں، اس کے پیروڈیز بھی بنی، رہنے کو گھر نہیں ہے. سر ایک اور بھی ہے وہ جو ہے نا آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو ہندوستان کی، وہ بھی ہم نے پاکستان کر کے بنا دیا. یس وہ کچھ اور تھا، فلمی چوری کی. وہ انڈیا میں تو ٹرین میں بچے سیر کر رہے، میں نے دیکھی ہے وہ. It is one of the first films ریگل سنیما کراچی میں لگی تھی. تو میں نے بھی نکال کے دیکھا، آئی تھنک وہ 51 کی تھی اور ہم نے 57 میں یا 56 میں مارشل لاء سے پہلے بن چکی تھی. جب جس زمانے میں ہمارے یہاں پرائم منسٹر وہ نہرو جی کی دھوتی کی طرح بدلے جاتے تھے. سو وی ور ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ فار اے پارلیمنٹری سسٹم آف رول. ہمارے ذہن میں بادشاہتوں کی اور راجہ رانیوں کی کہانیاں اور جنگوں کی داستانیں اتنی ایمبیڈڈ تھیں کہ سوچ سمجھ کی ہم سے بات نہیں ہوئی. آپ صرف یہ سوچئے کہ بھلے شاہ کو کسی نے آتے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا پنجاب میں اپنا نیشنل پوئٹ. فیض کو یا اقبال کو جنہوں نے پنجابی میں نہیں لکھا، اس کے لیے پنجابی مرے جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا پاکستان ہے، اس کو تو ہمارے یہ ہیں. ارے بھیا تم بات نہیں کرنا جانتے ہو جس زبان میں. اور فیض صاحب جاتے جاتے اللہ کمیونسٹ سے پلٹا کھایا اور ایک دم ایک اللہ ہے اس کی حکومت رہے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے. تو وی آر اے کنفلکٹڈ پیپل ہیں. ہندوستانی نام ہمارے عرب ہیں، اور جہاں ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو دو نام ایک ہی شخص کے، فیض احمد فیض. ارے بھیا ایک فیض پہ بات کر لو. لیکن وی ور آل کاٹ اپ ان دس. ہماری اب تک آئیڈینٹی میں کرائسس ہے جو کہ دنیا کے کہیں اور مسلمانوں کی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہ نہیں، کیونکہ بنگلہ زبان ہے، کلچر ہے. لیکن سر یہ لوگ الیکشنز میں کیسے آ گئے؟ آرمی جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں الیکشنز، اپنی مرضی کے لیڈر لا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ تو بنگال کا جو رزلٹ آیا جگتو فرنٹ کا، تو یہ تو ان کے تو چھکے چھڑ گئے کہ they lost every seat almost to the newly formed جگتو فرنٹ. تو اے کے فضل الحق اور یہ اس وقت نئے نئے مولانا بھاشانی صاحب جنہوں نے سلیٹ کے ووٹنگ کے اندر گائے کا گلا کاٹ دیا ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے. یہ تو ہماری سوچ تھی کہ وہ کمیونسٹ بھی تھے، مسلم نیشنلسٹ بھی تھے، بنگالی بھی تھے. تو وی ریلائڈ آن سچ پیپل. خواجہ ناظم الدین کو ہم نے اپوائنٹ کر دیا گورنر اور سہروردی کو باہر چھوڑ دیا. تو جو ویکیوم ہے یا لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ تو اٹھ گیا. ان کو تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کس کو چلا رہا ہے. 58 کا جو مارشل لا لگا ہے، تو دی اونلی تھنگ آئی ریمبر از کہ اس سے پہلے الیکشن ہو رہے تھے میونسپیلٹی کے، اور نیشنل الیکشن جنوری 59 میں ہونے تھے. تو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا رکشے والا
आजाद है और इस टाइप के स्लोगन्स होते थे. It was quite for I was maybe 5-6 year old, but it was नहीं ज्यादा, I was about 10. It was quite fascinating. कराची में इलेक्शन हो रहा है, झंडे चल रहे हैं, बिल्कुल जैसे होता. And all of a sudden एक दिन हम सुबह उठे और there was martial law. And लोग, मैं आपको बताऊं, खुशी का उनका वो नहीं था कोई, क्योंकि सड़कें धुलने लग गई. The first thing we remember about Ayub Khan's martial law is कि गांधी गार्डन के पास हम रहते थे, सड़कें धुलने लगी, लोग खुश, बाश. ये दफा हो सियासतदान जाएं. So what the ordinary citizen needs is कि एक नॉर्मल जिंदगी जिसके अंदर स्टेट की जो ड्यूटी है वो पूरी उतरे, वो कोई करे. अब मुस्तकिल, क्योंकि आपका इलेक्शन नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान में, 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो मौलवी तमीजुद्दीन केस को आप पढ़ लीजिए, उसमें फौज का इन्वॉल्वमेंट था. 1 यूनिट जो बनाया इन्होंने कि चारों सूबों को मिला के एक सूबा बना दिया, यानी गवादर का जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो लाहौर बना दिया. आपको कराची में काम है, यू हैव टू गो टू लाहौर टू गेट इट रिजॉल्व. तो बंगाल को कंटेन करने के लिए 1 यूनिट बना, यानी इलेक्शन नहीं होगा. वो इन्फोर्स कैसे किया आप सोचिए. गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे गोरे कब्रिस्तान में दफनाना. दीज आर द पीपल हु वर लीडिंग अस. कि वो अपने आप को गोरा समझते थे कि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान गुलाम मोहम्मद, तो उनको गोरा कब्रिस्तान में दफना है, वो कराची में नहीं है. आपके जो आयशा भवानी स्कूल के पास इलाका शायद बिल्कुल है सर, अभी भी है सर, अभी भी है वहां दफना. हम गोरा मैन है, हमको गोरा कब्रिस्तान में डालो. तुमने शक्ल नहीं देखी आज. तो वी वर कॉट इन दैट कॉम्प्लेक्स के कौन किसको समझा जाए रूलर और किसको नहीं. और इस टाइप के माहौल में जहाँ लोग अफरा तफरी में बैठे हुए हैं, लोगों के जो उठने बैठने का तरीका है उस पर पाबंदी लग गई. पूरे वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू वॉज इन्फोर्स. सिर्फ 5% लोग उर्दू बोलते थे पाकिस्तान में. इट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज. दैट मीन्स जैसे कराची का एग्जाम्पल, गुजराती वॉज द लैंग्वेज, मेमनी, गुजराती. 2 डेली न्यूज़पेपर होते थे, खत्म हो गए. इवनिंगर खत्म हो गया, वतन निकलता था, मुझे याद है. बैंकरप्टेड, थ्रोन आउट, एंड उर्दू बिकेम द चीफ. जितना गुजराती में स्टूडेंट्स मैट्रिक करते थे, दे ऑल बिकेम रिडंडेंट. उनमें से किसी को उर्दू लिखनी भी नहीं आती थी. तो आपने पूरी एक क्लास को हटा के यूपी बिहार से महाजरों को ला के कह दिया ये है तुम्हारा पाकिस्तान. तो पहले ही एक रिजेंटमेंट, वो जो आए थे वहां से कि जमीनें छोड़ के आए हैं, हमें ये मिलना चाहिए, क्लेम के ऑफिस होते थे, अब जाके क्लेम कर लें, आपको घर मिल जाता था किसी हिंदू का. ये बहुत ज्यादतियां हुई. उसके बाद तो once the chaos is ended, आम आदमी क्या चाहता है कि chaos खत्म हो जिंदगी से. तो 1959 का इलेक्शन नहीं होने दिया फौज ने. और ये जहां कनाडा में मैं रहता हूं, यहाँ ऑटवा के अंदर आके फील्ड मार्शल अयूब खान जो बाद में बने, उनकी मीटिंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तक सेंटो और सीटो का मेंबर बन गया था, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस. सेंटो जो था ईरान, टर्की और पाकिस्तान था, और सीटो जो था पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपींस. ये नेटो की तरह ये इनका सेंट्रल सेक्टर जो था वो पाकिस्तान था, क्योंकि ये दोनों पैक्ट्स का था. यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेस था यहाँ बिहार बेट पे, एंड एवरीथिंग वाज डन विद द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा था कि हम अमेरिका के लाए हैं. आइजनहावर जब गया है कराची में, ही वाज इन एन ओपन कार अयूब खान के साथ, और हजारों के हिसाब से बच्चे स्कूलों से लाए गए, झंडे लिए हुए हम खड़े हुए थे. पाक अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद. हमें समझ नहीं आता था उस वक्त ये लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं. सो द मिलिट्री वाज एट द बैक ऑफ इट, पार्टली टू कीप पाकिस्तान इन लाइन विद द अमेरिकन एजेंडा. के जो रूस और सोवियत यूनियन की अंडरबेली है, या कि ताहिर शाह को कंटेन करके रखना है कि वो घुस ना जाए बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान को ठेका मिला था. एंड वही ठेके पे चल रहा था पूरा मुल्क. इसीलिए अब भी आपके जो जनरल्स हैं अमेरिका जाते हैं, उनको वीजा नहीं है, उनका पेंटागन से रास्ता है. वो रावलपिंडी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के अलग अपने ताल्लुकात हैं, which are department to department. It doesn't matter who is running Pakistan, but they still have their people here, and our generals can go there and settle down in the West. So election नहीं होने, avoid करने के जिस खौफ से कि अगर इलेक्शन हुआ और उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी, अवामी लीग नहीं थी उस वक्त, नेशनल पार्टी was on the threshold of forming a government.
नेशनल पार्टी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में प्रोफेसर मुजफ्फर, मौलाना भाषानी, अवामी लीग, ये सब लोग एक ही उसमें थे. यहाँ सिंध के अंदर DM सैयद, गुलाम मोहम्मद लगारी, पंजाब में जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, अलमेडा साहब के भी रिश्तेदार, CR असलम, मिर्जा इब्राहिम, और फिर खान अब्दुल वली खान या फ्रंटियर में बलूचिस्तान में वीर गौर. इट वाज क्लियरली रिटन आउट कि ये पूरी कंट्री विल इलेक्ट द नेशनल आर्मी पार्टी. एंड उनका स्लोगन था, 2 स्लोगन थे, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो. आपने सुना नहीं होगा, ये रिकॉर्ड कर दी, सीटो सेंटो छोड़ दो, 1 यूनिट तोड़ दो. ये हमें बचपन में समझ नहीं आता था क्या कह रहे हैं, 1 सीटो 1 यूनिट किधर है. बिकॉज एक माँ बाप भेजते थे कैथलिक स्कूल में, सेंट लॉरेंस में जा रहे हैं, टाइयां निकले पहने में, पता ही नहीं कि आम लोग जिंदगी कैसे गुजारते. झुग्गियां होती थी हर जगह कराची के अंदर, जहाँ हाजिर आके बिहारी के ऊपर नाज़िमाबाद के पास रहते थे. बड़ी टफ कंडीशन में लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारी यहाँ. एंड देयर आउटलेट वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. और फौज का मकसद था कि किस तरह होएगा जनाब, मजाक बनाया. उन्होंने अमेरिकन के साथ ओके करा के अक्टूबर 8 था या ये कुछ ऐसा ही था, हाँ, अयूब खान ने कू कर दिया. इलेक्शन जनवरी का खत्म हो गया, सबको जेल किया. एब्डो एक चीज होती थी, इलेक्टरल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, यानी हाँ, एब्डो का टीका लगा दिया आपको, नाउ यू कैन नॉट रन फॉर इलेक्शन. बाद में 62 में नया कॉन्स्टिट्यूशन ले आया अयूब खान, इसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसी थी. और दैट मेड श्योर के 80,000 लोग इलेक्ट होंगे पहले, और वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे. तो फातिमा जिन्ना उसी फिर इलेक्शन में उनको हराया गया 1965 में. Although she swept East Pakistan. ये जो सब कहते हैं ना कि बंगाली तो पहले ही से दुश्मन थे, इंडिया ये वो, she was very popular politician. और शेख मुजीब उनका इलेक्शन लड़ा रहे थे. He was one of the people involved. तो फौज को ये चीजें कभी पसंद नहीं आई कि एक आम कम्युनिटी या एक लाख के जलसे में या एक सियासी पार्टी फैसला कर ले कि हुकूमत कैसे चलेगी. क्योंकि आज तक आपका ऑफिसर जो है वो तैमूर को वो करता है और तुगलक को मानता है और सारी आइडियल बना रखा है. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज पर. आपने देखा कि किस तरह से तारिक फतेह साहब ने बताया कि पाकिस्तान सिर्फ भिखारी ही नहीं बल्कि एक चोर देश भी है. उसने हिंदुस्तान की कई सारी चीजें चुरा रखी हैं. लेकिन आज इस वीडियो में हम एक और बात करने वाले हैं कि इन दिनों भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, इन दिनों सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं. दोनों देशों में उनके हीरो बनने की वजह उनकी ईमानदारी है. पाकिस्तानी लोग थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की तारीफ करते नहीं थक रहे. यानी भारतीय सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान में जहां ताली मिल रही है, वहीं पर उनके सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को गाली मिल रही है. जल्दी ही जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं. उनकी जगह अब नए सेना अध्यक्ष आ चुके हैं और हम आपको अब बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इनकी वाहवाही क्यों हो रही है. दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन दिनों सेना और सियासत दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. आपने सुना होगा कि उनकी पार्टी के लोग बाजवा को चोर चोर कहकर संबोधित करते रहते हैं. अब ऐसे में ही एक खबर और आई कि बाजवा सेनाध्यक्ष रहते हुए लगभग इतनी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है कि पूछिए ही मत. और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि इसका फायदा उन्होंने अपने परिवारजनों को भी दिया है. और तभी से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे की तारीफ कर रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं बाजवा से कि किस तरह से वो एक ईमानदार हैं. और यहाँ बाजवा 6 साल सेनाध्यक्ष में रहते हुए खरबों की प्रॉपर्टी बना चुका है. और यही नहीं दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफें पाकिस्तान में आजकल की जा रही हैं. क्योंकि पाकिस्तानियों को भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लगभग 10 साल रहने पर भी आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई दाग नहीं है. उनके ऊपर कोई भी संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है. वरना कांग्रेस जिस तरह से हमारे देश में बैठी है वो कम से कम अगर उसे ज़रा सा भी कहीं से क्लू मिल जाता तो उसको उखाड़ती ज़रूर. लेकिन कांग्रेस के हाथ में भी अभी तक ऐसा कुछ लगा ही नहीं है. तो जाहिर सी बात है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस चीज़ की बात होती है कि एक साफ सुथरी जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसकी तारीफ करना हमारे पड़ोसी मुल्क की भी मजबूरी बन गई है.
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।